Next part is data integration. So integration means when we want to merge data that is collected from various data sources. So when we combine that data, many times redundancies occur in that data. Okay, now how to remove those redundancy? For that we have various techniques. So here you can see correlation analysis, then chi-square test, correlation coefficient, then covariance. These are some of the techniques to find redundancies in the data. And why we should remove redundancy? Because if redundancies are there in the data become inconsistent, and whatever information, whatever knowledge you will extract from that data, that will be inaccurate. Okay, so there is need to remove this redundant data. Then for that, the first technique is correlation analysis. Okay, so correlation analysis, what is meaning of correlation analysis? It measures how strongly one attribute implies other attribute. So to find that correlation, we have some techniques. Okay, when one attribute is related, closely implies another attribute, then we should remove one of them. Okay, right? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे आपके परचेज हिस्ट्री में कॉलम है, क्वांटिटी है और प्राइस है. ठीक है, so from quantity and price you can calculate the total, but still total column is present in your data. So this is what price and quantity, price into quantity directly implies what? Total. So there is no need to store total, because you can easily calculate the total. So such attributes are called as redundant attributes. So we should remove this total, because quantity and price both are important. Total we can calculate from quantity and price. So such redundant attributes need to be removed because they uh, consume your memory storage, right? And due to that processing speed also decreases. So that is the reason we should remove redundancy in the database. Okay, so ऐसे attributes हमें निकालने हैं. तो ऐसे attributes सबसे पहले आपको find out करने पड़ेंगे कि आपके data में कोई ऐसे attributes है या नहीं. So for that we need to find out, we need to do this correlation analysis. Okay, so with correlation analysis we can measure how strongly one attribute implies other. So if one attribute, let's say A, strongly implies the other attribute, then we can remove one of them. Either you can remove B or A. Okay, and you have to keep one only. Then that means you are removing the redundancy. Okay, now let us start with that correlation analysis. So for correlation analysis, the first technique is chi-square test. Okay, so this chi-square test is used for correlation. It is a correlation test for nominal data. Okay, so I hope you are well aware with nominal data, right? Whenever in your data set you have nominal data, that means label data, which is not number. And we have seen nominal data and ordinal data, right? So ordinal data which have order, this is small, medium, large. This is what ordinal data. Now right now we are talking about nominal data, which is label data, and these are the examples. So if in your data set you have some columns which are having nominal data, जैसे दो कॉलम है आपके पास ए और बी, दोनों में भी नॉमिनल डेटा है आपके पास, कोई भी हो सकता है, और एंड यू वांट टू फाइंड correlation between these two attributes, then you can use this chi-square test. So chi-square test is used for relation test of nominal data, right? समझ में आया chi square टेस्ट कब यूज करना है?
It is used to discover correlation relationship between two nominal attributes A and B. गॉट इट। सबसे Okay. पहले आपको ये समझना है कि कौन से डेटा के लिए यूज होता है, देन हम देखेंगे कि वो कैसे यूज करना है। गॉट इट। Yes, ma'am. So now this test involves creating contingency table where distinct values of A form the column and distinct values of B form the rows. Okay. Now we will see step by step process how to perform this chi-square test. But this test involves creating a table. Okay. Now how to create that table, that we will see. Okay. Now these are the steps for chi-square test. So in the first step, you have to formulate the hypothesis. Okay, this hypothesis is nothing but the assumption. You have to assume something. Okay, so there are two types of hypothesis: null hypothesis and alternative hypothesis. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ दो बातें assume करनी है। ऐसे मान लो उसमें से एक क्या है, नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या अज्यूम करना है, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ऐसे हमें अज्यूम करना है। और H1 क्या होता है, अपोजिट टू H0। द टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, मतलब देयर इज एन एसोसिएशन और देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन देम। गॉट इट। फर्स्ट स्टेप, we have two variables A and B. H0 means we will consider there is no any correlation between them. This is what H0, and we will assume H1 as there is some correlation between A and B. Okay. Now second step, we have to create a contingency table. Okay. So this is the table which display frequency distribution of variables. Okay, with example we will understand, so don't take tension right now. Okay, so just remember the steps. First you have to formulate the hypothesis. Second step, you have to create a contingency table which consists of frequency distribution of variables. Then in third step we will calculate expected frequencies, and there is a formula to calculate expected frequency: row total into column total divided by grand total. Okay, then fourth step is to compute chi-square statistics. So for calculating chi-square, we have again some formula. Okay, and in this formula we are using EIJ. EIJ means expected frequencies that we have calculated in third step. Okay, that we are using here in fourth step. And one more variable is there, that is OIJ. What is OIJ? It is observed frequency, and EIJ is expected frequency. Okay, then fifth step, we have to determine degrees of freedom. Okay, again we have some formula to calculate degrees of freedom. Okay, then in sixth step we have to compare whatever value we have calculated. We have to compare that value with critical value. Okay, and where we will get this critical value? For getting critical value we have a table which is already formed. जैसे log table होता है वैसे ही एक chi square distribution table होता है, उसमें से हमें एक critical value लेना है, and we have to compare our calculated value with ये जो calculation है, this calculated value we have to compare it with critical value, and then we can draw the conclusion. So drawing conclusion means if calculated chi-square value is greater than critical value, then reject the null hypothesis. Reject the null hypothesis means what was our null hypothesis? There is no association. So we are rejecting it, means there is a association. If chi-square value is greater than critical value, means A and B are correlated, otherwise they are not correlated. Okay, now let us understand this with one example, it will be more clear. Okay, basically what is use of chi-square test?
Yes, what is use of chi-square test? If we have two variables A and B, we have to find whether these A and B are correlated or not. Okay, and to find correlation between A and B, we have this chi-square test. Okay, now here this table you can see on the screen is nothing but our sample data set, or this is the frequency distribution of the table, or frequency distribution of the data set. Okay, now what is scenario? A researcher want to determine if there is an association between gender and preference for type of reading material. Okay, now we have some data of some people. Okay, I'll just draw a sample data here. Data of some people, so PID maybe is there, then gender is one column, and type of reading material is another column. Okay, some personal detail may be there, but we are concerned with this only. Okay, so now suppose there is a person one whose gender is male and who like to see type of reading material is will be having only two values, fiction and non-fiction. These are types of books. Some books can be fiction, some books may be non-fiction. So here one person whose gender is male, maybe he love to read fiction types of books. Let's say another person is there whose gender is again male and who love to read non-fiction books. Then another person is there who is female and like non-fiction books. Then fourth person is there who is male and like fiction book. Like this we have a entire data set. समझ में आया? ये है हमारा डेटा सेट जिस पे हमें एनालिसिस करना है. तो बिफोर एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं उस पे डेटा प्री प्रोसेसिंग. और डेटा प्री प्रोसेसिंग का कौन सा स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं? Okay, let me again draw here the flow. We have a data set. ये data set के ऊपर हमें क्या करना है? कुछ data analysis perform करना है. For that, the first step is what? सबसे पहला step क्या है इसमें? Data pre-processing, right? Pre-processing में हमने let's say cleaning perform कर लिया. Okay, we have data from different resources. Now we want to integrate that data. Okay, now in this integration process we want to find correlation between nominal variables. Okay, Yes, अभी ma'am. हमें क्या करना है? फाइंड आउट कि जेंडर और टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल में कोई कोरिलेशन है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगर आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है नॉमिनल डेटा पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? काई स्क्वायर टेस्ट. ओके, नाउ काई स्क्वायर टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाते हैं. ठीक है, दिस कॉन्टिंजेंसी टेबल विल कंटेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, now on columns we have taken one variable, values of one variable, right? And in rows we have taken values of another variable. जैसे हमारे पास मेल फीमेल है जेंडर में और टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल में फिक्शन नॉन फिक्शन है. ठीक है, नाउ every cell we have to fill. Okay, this is the matrix we are forming. Now this what this 300 represent? ये हम क्या करेंगे? जैसे अगर आपने ये टेबल कंसिडर किया तो इसमें मेल और फिक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये जो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है, इफ वी कंसिडर दिस मच डेटा, तो इसमें मेल और फिक्शन बुक इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो m, f मेल, फिक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.
वैसे ही लेट्स कंसिडर कि हमारा डेटा सेट बहुत बहुत बड़ा है, तो उसमें मेल और फिक्शन की फ्रीक्वेंसी है 300। ओके, जैसे यहाँ पे मेल और नॉन फिक्शन की फ्रीक्वेंसी है 1, वैसे ही मेल और नॉन फिक्शन की हमारे एक्चुअल डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी है 200। ओके, नाउ दिस वैल्यू रिप्रेजेंट व्हाट, फीमेल एंड fiction, and then female and non-fiction. This frequency we have counted from original data set. आया समझ में ये नंबर्स कहाँ से आए, ये चार, 300, 200, 150 एंड 850। ये यहाँ पे मैंने जो डेटा सेट ड्रॉ किया है ना पेन से, वैसा ही आप समझ लो कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें टोटल 1500 रोज है। ठीक है, तो ये जो 1500 रोज है इनको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। कौन से 4 पार्ट्स, एक तो मेल फिक्शन, ये हुआ एक, मेल नॉन फिक्शन, फीमेल फिक्शन, फीमेल नॉन फिक्शन, राइट। तो हमारे पास ये डेटा में कोई भी वैल्यू होगी तो एक तो कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी रो हम कंसिडर करेंगे तो वो इन चारों में से एक होगी, राइट, यस मैम। बिकॉज जेंडर है और टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल है। तो एक तो मेल फिक्शन होगा या मेल नॉन फिक्शन होगा, फीमेल फिक्शन होगा या फीमेल नॉन फिक्शन होगा, राइट। तो हमने ये टेबल कैसे बनाया कि हमने काउंट किया कि मेल फिक्शन के कितने रोज है, मेल नॉन फिक्शन के कितने रोज है, देन फीमेल फिक्शन के कितने रोज है और फीमेल नॉन फिक्शन के कितने रोज है, ये हमने काउंट किए। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स। अभी समझ में आया? तो वो जस्ट हमने यहाँ पे इस टेबल में मैट्रिक्स में पुट किया। कैसे किया, रो में हमने लिया मेल फीमेल, कॉलम में लिया हमने फिक्शन नॉन फिक्शन, और वो जो जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, राइट। 300, 200, 150, 850, अगर आप ये पूरा टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1500। नाउ अलोंग विद दिस हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल भी लिखना है। ये हो गई हमारी रो टोटल, राइट। मेल की टोटल है हमारे पास 500, नंबर ऑफ फीमेल जो है उसका काउंट है 1000। ओके, सिर्फ अगर हम फिक्शन का फिक्शन वैल्यू कंसिडर करें तो उसके नंबर ऑफ रोज है 450 और नॉन फिक्शन के है 1050। ओके, ऐसे टेबल हमें फॉर्म करना है। जो भी डेटा दिया जाएगा उसके ऊपर से हमें ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनाना है। इस टेबल इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आगे हमें और एक टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हर एक पेयर के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था वो, टोटल ऑफ रो इनटू टोटल ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ओके, मैं आपको बताती हूँ वो फॉर्मूला। सी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉलम है, सॉरी फॉर्मूला है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ओके, ऐसे हमें हमारे पास जो भी चार कॉम्बिनेशन है उन सब के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, राइट। जैसे सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन है मेल फिक्शन। ओके, तो मेल का आपको टोटल लेना है। व्हाट इज टोटल ऑफ मेल, in this table also you can see what is total of male, रो टोटल क्या है, this is our row and this is column, right. So row total is 500, column total is 450 divided by grand total that is 1500। उसकी जो वैल्यू आएगी that you have to put here in the bracket। ये क्या है, ये कौन सा सेल है, मेल और फिक्शन का, तो इसके यहाँ पे ब्रैकेट में हम
150 रख देंगे. Now next value we have to calculate, that is male and non-fiction. Again this is row, this is column. So what is row total? 500, right? नॉन फिक्शन की टोटल कितनी है? नॉन फिक्शन के कॉलम की टोटल कितनी है? 1050. सो हम क्या करेंगे? 500 इंटू 1050 डिवाइडेड बाय 1500, दैट इज ग्रैंड टोटल. इसकी क्या आई वैल्यू? 350. वो कहाँ पे रखनी है? मेल नॉन फिक्शन. सो दिस इज मेल एंड नॉन फिक्शन. यहाँ पे क्या रखा हमने? 350, राइट? देन नेक्स्ट इज फीमेल फिक्शन. सो फीमेल के रो का टोटल कितना है? व्हाट इज टोटल रो टोटल? 1000. 1000, राइट? एंड व्हाट इज कॉलम टोटल ऑफ फिक्शन? 450. 450. So 1000 into 450 divided by 1500. ये क्या आया? 300, that we are putting here. And same way female non-fiction. Again female is 1000, non-fiction is 1050 divided by 1500 is equal to 700. वो हमने यहाँ पे put कर दिया. This table frequency distribution with expected frequency is called as contingency table. Expected frequency, OIJ मतलब observed frequency. ये जो contingency table आप देख रहे हो, इसमें ये 300, 200, 150 एंड 850 ये क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, राइट? जो हमने इस टेबल में भी देखी थी. इसको कहते हैं OIJ, दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. और ये जो है 150 ब्रैकेट में हमने लिखी है, ये क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ओके, जितने भी वैल्यू, जितने भी पेयर है हमारे पास, उन सब के लिए हमें कैलकुलेट करना है सेम, और फिर उनका एडिशन करना है. ठीक है, तो ये सबसे पहले सेल के लिए क्या आएगा? 300 माइनस 150 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150, राइट? यहाँ पे देखो 300 माइनस 150 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150. वैसे ही सेकेंड सेल के लिए 200 माइनस 350 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 350. ऐसे ही चारों वैल्यूज के लिए हमें कैलकुलेट करके उनका एडिशन करना है. ठीक है, तो इसका आता है 150. This is evaluated to 64.29. This is getting evaluated to 75, and last one is 32.40. Now we will add all these four values and we are getting 321.43. ये क्या है? chi square statistic. या this is the chi square value. आया समझ में यहाँ तक? Yes ma'am. नाउ ये जो वैल्यू है ये हमें कंपेयर करनी है क्रिटिकल वैल्यू के साथ. ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू के साथ कैलकुलेट करने के लिए हमें लगता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, ये जो क्रिटिकल वैल्यू आता है, क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से देखनी होती है हमें? एक लॉग टेबल जैसा टेबल होता है, मैं आपको बताती हूँ. ये क्या है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड उसकी क्रिटिकल वैल्यू. ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल वैल्यू. हर एक क्रिटिकल वैल्यू के लिए यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है. ओके, तो ये टेबल रेडीमेड होता है, वो हमें यूज करना है, लेकिन उसके पहले हमें निकालना पड़ता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, उसका एक फॉर्मूला है विच इज वेरी मच सिंपल. क्या करना होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1. ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे? 2. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स? Ma'am 2. 2, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया? नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1, दैट इज 2 -1 इंटू 2 -1. ये वैल्यू आई हमारे पास 1. ओके, तो फॉर DF इज इक्वल टू 1 एंड सिग्निफिकेंस लेवल इज
सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 ये हमें डिसाइड करनी होती है। ठीक है, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो सिग्निफिकेंस लेवल is decided by data analyst. Okay, but the standard value for significance level is 0.05. So here we are considering that 0.05. तो हमें अभी वो जो हमारा टेबल है chi square डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें क्या देखना है, df इज इक्वल टू 1 एंड सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड क्रिटिकल वैल्यू 0.05, उसके लिए क्या वैल्यू है हमारे पास 3.841। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रिटिकल वैल्यू। अभी क्या करना है हमें, ये जो क्रिटिकल वैल्यू है 3.841 वो हमारे काय स्क्वायर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो हमारी काय स्क्वायर वैल्यू आई थी 321.43। So this chi-square value is very much greater than this critical value. तो अभी अगर आप ये जो क्रिटिकल वैल्यू आया है वो और हमारे जो chi square की वैल्यू है वो कंपेयर करोगे तो this chi square value is very much greater than this critical value, right? So when the chi-square value is greater than critical value, we reject the null hypothesis. और null hypothesis हम क्या consider करते हैं, जैसे ये हमारे दो कॉलम कौन से थे, जेंडर एंड टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल, राइट, ये थे हमारे दो कॉलम। तो हम नल हाइपोथेसिस दैट इज H0 में क्या कंसिडर करते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कोरिलेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज H0 दैट इज नल हाइपोथेसिस। ओके, ये जस्ट टर्म्स है हम यूज करते हैं, इसके लिए ज्यादा बॉदर मत करो, मतलब जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर। और अगर नहीं भी याद रहा तो भी कुछ नहीं, जैसे अगर आपका जो काय स्क्वायर का टेस्ट है उसका वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब जेंडर और टाइप ऑफ रीडिंग में एसोसिएशन है या कोरिलेशन है, दे आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड। आया समझ में? अगर क्रिटिकल वैल्यू से आपका chi स्क्वायर का वैल्यू बहुत बड़ा है, दैट मीन्स दोज टू कॉलम्स आर कोरिलेटेड। गॉट इट? और अगर Yes, ज्यादा ma'am. डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल है या फिर chi स्क्वायर की वैल्यू इससे भी कम है, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। गॉट इट? Yes, ma'am. पक्का समझ में आया? अभी इसको नल हाइपोथेसिस माने नहीं मैम। नल हाइपोथेसिस हम शुरू में ही एज्यूम करते हैं कि जो दो कॉलम हम कंसिडर करने वाले हैं उनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम दैट जेंडर एंड टाइप ऑफ रीडिंग आर नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, और एक हाइपोथेसिस होता है दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं H1, और इसमें हम एज्यूम करते हैं जेंडर इज कोरिलेटेड विथ टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल। तो जब आपकी chi स्क्वायर की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बहुत बड़ी होती है, दैट मीन्स वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन जब ये वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं है तब हम क्या करेंगे, वी विल रिजेक्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। chi स्क्वायर टेस्ट सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आपके डेटा सेट में नॉमिनल एट्रीब्यूट्स है और नॉमिनल एट्रीब्यूट में आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, देन वी यूज chi स्क्वायर टेस्ट। ओके, और उसके साथ आपको क्या याद रखना है कि कोरिलेशन क्यों फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब हमें पता करना है कि हमारे डेटा में रिडंडेंसी है या नहीं। ठीक है, तो कोरिलेशन है मतलब रिडंडेंसी है, तो जब कोरिलेशन होता है तब
जब हमारे दो कॉलम्स डेटा सेट में कोरिलेटेड होते हैं, स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं, तो उनमें से एक हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, तो वो रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट से। और जब काई स्क्वायर टेस्ट से हमें पता चला कि ये दोनों कोरिलेटेड है, तो ये जेंडर एंड टाइप ऑफ रीडिंग में से हम कोई भी एक हटा सकते हैं और कोई भी एक रख सकते हैं। बिकॉज इफ दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड, स्ट्रांगली को रिलेटेड, दैट मीन्स हमारे डेटा में रिडंडेंट डेटा प्रेजेंट है, रिडंडेंसी प्रेजेंट है, which is not good for quality data. So to remove redundancy, we have to calculate correlation.